السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ سے بات کرنے کا تھا۔ جی ہاں بولیں۔ شیخ میں فصیح الدین حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ کون؟ حیدرآباد سے فصیح الدین۔ ہاں ہاں بولیے۔ شیخ ایک پیغام آیا ہے، ایک میسج آیا ہے، وہ آپ کی طرف منسوب کیا گیا ہے یا سچ میں آپ کی طرف سے ہے، اللہ عالم، تو میں اسی کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتے ہیں، اللہ عالم، تو میں اسی کے بارے میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا۔ ہاں کیا؟ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شیخ محترم کو یعنی آپ کو فصیح الدین کے منکرات اور خرافات کے بارے میں جب معلوم ہوا تو شیخ نے ہمیں سختی سے ایسے لوگوں سے دور رہنے کا اور تردید کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور شیخ رقیہ سینٹر جیسی چیزوں کو بدعت سمجھتے ہیں، تو کیا یہ آپ کی طرف منسوب کیا گیا ہے یا آپ نے ہی ایسا کہا ہے؟ کس نے بھیجا ہے؟ یہ آپ کا ایک چینل ہے یوٹیوب پر ظفر الحسن نام سے، اس چینل پہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہوا ہے اور یہ تحریر ہے، یہ جو ہے شیئر ہوا ہے پورے فیس بک پہ۔ ہاں ہاں، تو میں وہی پوچھ رہا تھا کہ یہ آپ کی طرف منسوب کیا گیا ہے یا سچ میں آپ نے ایسا کہا ہے؟ ہم سے جس نے پوچھا، ہم سے جو کسی نے پوچھا کہ آپ نے فصیح الدین کے پاس رقیہ کے لیے بھیجا تھا، میں نے کہا میں نے کہا تھا بھیجنے کے لیے، پتہ نہیں میں نے بھیجا کہ نہیں بھیجا، اور میں اس لیے بھیجا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں رقیہ سینٹر ہے، میں فصیح صاحب کے پاس رقیہ کے لیے بھیجا تھا۔ جی اتنی بات ہوئی تھی، جی سمجھیے نا۔ جی ہم نے رقیہ کے لیے بھیجا تھا، رقیہ سینٹر مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے ابھی شیخ مقیم یا آپ کی کچھ بحث ہوئی تب مجھے پتا چلا کہ رقیہ سینٹر ہے، جی ورنہ ہمیں رقیہ سینٹر کا علم نہیں تھا۔ ہم آپ کو راکی سمجھتے تھے، من حیث راکی کے میں نے بھیجا، کسی کو بھیجا تھا، جی یہ بات ہوئی تھی، جی یہ بات ہوئی تھی۔ لیکن اس کے اندر دو باتیں جو ایکسٹرا ہے کہ شیخ کو اس بندے کے منکرات اور خرافات کا پتہ نہیں تھا، شیخ نے حسن ظن رکھتے ہوئے بس اس کے نمبر لیے تھے، اور شیخ کو یاد نہیں کہ شیخ کسی کو نمبر دیے بھی یا نہیں، بھیجے بھی یا نہیں، لیکن جب شیخ کو اس بندے کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ یہ منکرات اور خرافات ہے تو پھر جو ہے شیخ نے رد کرنے کو کہا، دور رہنے کو کہا سختی سے۔ ہم نے عمومی بات میں نے کہی تھی کسی سے، سمجھ گئے نا؟ جی سمجھے نا؟ تو یہ عمومی بات کہی تھی، ایک منٹ، ہم نے عمومی بات کہی جی کہ مجھے اب تجربہ ہو رہا ہے کہ رقیہ سینٹر میں بہت سارے لوگ منکرات کے ارتکاب کر رہے ہیں، اس لیے رقیہ سینٹر سے اجتناب کرنا بہتر ہے، یہ نہیں تو عمومی کہا، لیکن اگر خاص طور پر یہ کہہ دیتے کہ ہمیں فصیح الدین کے ہم سے آپ کے بارے میں کسی نے نہیں پوچھا کہ فصیح الدین کا رقیہ سینٹر، سمجھ گئے نا؟ جی، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے، یہ میرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، فصیح الدین لکھا ہوا ہے اس میں۔ ایک جی بلکہ میں نے عمومی بات کہی کہ ابھی بھی ہمیں اب تجربہ ہوا کہ رقیہ سینٹر میں کچھ بعد میں فاسد پیدا ہوتے ہیں، اس لیے بہتر ہے اجتناب کرنا، اور رقیہ انسان کر سکتا ہے، کہیں بھی چلتے پھرتے مسجد میں گھر میں کہیں بھی رقیہ کر سکتا ہے، جی لیکن فصیح کا نام لے کر کے جہاں اس کے رقیہ سینٹر میں میرے منکرات دیکھا ہے، میں نے کسی کو نہیں کہا، آپ نے ایسا نہیں کہا ہے، اور نہ آپ کے رقیہ سینٹر کو بننا مجھے کوئی علم نہ تھا، میں تو اب سنا۔ جی نہیں، لیکن یہ آپ کی طرف منسوخ کیا گیا ہے جیسا ہے، جب شیخ محترم کے علم میں اس شخص سے ترزد ہونے والے منکرات و خرافات آئے تو انہوں نے ہمیں سختی سے ایسے لوگوں سے دور رہنے کا۔ ایسے لوگ نہیں، میں نے کہا رقیہ سینٹر والوں سے جہاں منکرات کا اظہار ہو رہا ہے، جی جہاں موجودی کو کہلا مالا یہ کہ ایسے موقع پر اجتناب سینٹر کو کر لینا چاہیے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ عادل کے یہاں منکرات ہے یا فصیح کے یہاں یا کسی اور کا منکرات۔ جی تو لیکن لوگ نے میرے نام کو جوڑ دیے، یہاں پر لوگ نے میرے نام کو جوڑ دیے اور اتنا فتنہ پھیلا رہے ہیں، نام جوڑ دیے، شیخ یہاں پر نام لکھا ہوا ہے، میں اس لیے میں پوچھ رہا ہوں، میں ڈائریکٹ فون کرنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ کیا شیخ کو اس دن منکرات کے بارے میں نہیں علم تھا فصیح کے، جو آج شیخ ایسا بول رہے ہیں، یا پھر شیخ کی طرف منسوب ہے؟ سمجھ گئے نا؟ عمومی بات میں نے کہی، عمومی بات کہی، عموم میں سب آ گئے نا شیخ، پھر ہم بھی، ہمارا رقیہ سینٹر بھی آ گیا، جس میں جو ہے نہ بدعت مفسقہ ہے نہ بدعت مکفرہ ہے، یہاں پر الحمدللہ
एक वो आप जाने, आपका रब जाने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, समझ गए ना? शेखना, लेकिन मसला ये है कि उमूम में कह दिए तो लोग जो है हम पर इस तरीके से बोल रहे हैं, कड़वाहट के साथ जहर उगल रहे हैं लोग, तो ये तकलीफ दे बात है, हमारे पास नहीं होगा। अगर आप किसी का खास अगर कह देंगे, हर आदमी अपने अपने मामले का जिम्मेदार है, हर आदमी अपने अपने मामले के जिम्मेदार है शेख। लेकिन यहाँ पर नाम लेकर आपका और हमारा जोड़ दिया गया, इस वजह से मैं ये आपको पूछ रहा हूँ कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा कि आपने पूछ लिया, अच्छा कि आपने पूछ लिया। तो आप रास्ता करके पूछ लेना था कि ये अभी आया, ये 3 दिन हुआ है, मैं मसरूफ था, दौरे पे था, मैं को आज घर में जो है पहुंचा हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो है बात कर लूँ। यहाँ पर यह भी लिखा गया कि शेख रुकिया सेंटर जैसी चीजों को बिदअत समझते हैं। समझ गए ना? ये टोटल यही बात यही जो आपसे कही है, समझ गए ना? तो यानी आपने मेरा नाम लेके तो नहीं कहा फसीह के मुनकरात और फसीह के खुराफात, किसी का मैंने नाम नहीं लिया। तो ये आपके तरफ लोगों ने झूठ लिख दिया, समझे? ये मैंने नहीं कहा जी। अब अगर किसी ने लिखा नाम लेकर के आपका नाम लिया कि आपके बारे में कोई गलत जी, हमने किसी का नाम नहीं लिया है। जज़ाकल्लाह खैर। जब आपने कह दिया कि मेरा नाम लेकर किसी ने ऐसा कहा तो वो गलत है, फिर वो बंदा झूठा है। वो मुँही बात मैंने कही है कि समझिए ना? जी हाँ, जी हाँ, मेरा नाम नहीं लिया, जरूरी है, समझिए ना? और तरह तरह की बिदअत है, समझिए, या बिदअत मैंने ये कहा है कि मुनकरात है, उससे इजहार हो रहा है, तजर्बा बता रहा है कि लोग इस्तेदलाल कर रहे हैं, इसलिए इस्तेनाब बहुत ही जरूरी है। नहीं, आपने उमूम में कह दिए, लेकिन लोग हम पर खास करके जो है बहुत ज्यादा जहर जो है बोल रहे हैं। अल्लाह सबका मामला अल्लाह को देना। अच्छा, इसमें बोले, ये अब्दुल हमीद भाई आपके फर्जन, इन्होंने जो है जो वीडियोस बनाए हैं, तो इसमें उनको शहर हैदराबाद के जमईयत के करप्शन के बारे में कुछ नहीं मालूम और यहाँ के हालात के बारे में कुछ नहीं मालूम। वो जो है अहले हदीस के लिबादे में खवारिज नाम से वीडियो बना दिए। अब आप उसका चल रहा है, आपको अगर कोई उस पर एतराज है तो आप उसका जवाब दें। और सबसे बड़ी चीज है, मामला रुकियत है, उसमें से ना के बाद आप क्यों करना शुरू कर देते हैं? नहीं शेख, अगर आप रुकिया की बात शेख सिर्फ रुकिया का है, शेख का है, मेहरबानी करके ये बात सुनिए शेख, रुकिया की बात सुनो जी। रुकिया की बात हो रही है जी, रुकिया की बात हो रही है, रुकिया सेंटर की बात हो रही है जी। अब उसकी जमाती अहबाब को देखने न जमात के लाने का मामला क्या है, क्यों जमात का नाम लिया जाए? नहीं, मैं आपसे जो है दूसरी बात ये पूछ रहा हूँ शेख, मैं दूसरी बात आपसे पूछ रहा हूँ। 3 वीडियोस आपके फर्जन ने जो बनाए हैं वो रुकिया के लिए और मेरा नाम लेके जो बनाए हैं, फसीउद्दीन का रद पार्ट 1, फसीउद्दीन का रद पार्ट 2, फसीउद्दीन की नसीहत वगैरह, वो रुकिया के ताल्लुक से है। आपने जवाब दिया नहीं, रुकिया के ताल्लुक से नहीं है, रुकिया सेंटर के ताल्लुक से है वो। हाँ, रुकिया सेंटर के ताल्लुक से है, तो मैं उस बात को नहीं पूछूं। चौथा वीडियो जो है, जो मतलब दूसरे नंबर पर बनाया गया, तो अहले हदीस के लिबादे में खवारिज, ये वीडियो में नाम हमारा और हबीबुल कादर अल हामिद हफिजुल्लाह का नाम लिए बगैर हमारे ऊपर पूरी तफसील रख दिए हैं और जो है अमीरों के खिलाफ बोल रहे वगैरह वगैरह बोल के ऐसा बनाया गया है वीडियो। तो बहुत ज्यादा उसके अंदर यही है कि शहर हैदराबाद के ऊपर जो अभी हालात आए हुए हैं जमईयत के जो साबिका के करप्शन के वजह से, वो बात उनको पूरी मालूम नहीं, उन्होंने बस बना दिए, तो वो जमईयत की ताईद में ऐसी बात दिख रही है और हमारे खिलाफ में है। आप इत्मीनान साहब लिख करके भेज दें कि आपको मालूम नहीं है जमईयत के बारे में, इसलिए बेहतर है जमईयत के मुताबिक बैठ करके बात करेंगे। आपको लिखे लेकिन वो फारिग है कहीं से सनद याफ्ता आलिम आपके फर्जन, क्या उनको यायुल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु नहीं मालूम क्यों वो बनाए हैं? उनको क्या जो है हक बन रही, आप लिख करके भेजें ना, तो जज्बात दुकान थोड़ी लेना है फकीर, जज्बात नहीं मेरे मुहतरम। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या वो बना दिए वीडियो घर बैठ के, लेकिन यहाँ पर उस वीडियो का क्या हाल हो रहा है आपको कुछ भी नहीं मालूम। यहाँ पर हमारे ऊपर क्या आपने फिर 50 वीडियो बनाया, आपने कौन नहीं किया है? जी सर, आपने किया है ना वीडियो जी, पहले आपने किया वीडियो बनानी। कौन सा वीडियो बोल रहे हैं आप? व्हाट्सएप पर पहले तो आपने हंगामा शुरू किया ना मुस्लिम के खिलाफ,
मैंने क्या हंगामा, मेरे 16.5 मिनट के वीडियो में शेख मुस्लिम के खिलाफ क्या बोला? आप नहायत जारहाना अंदाज से बात की, इसलिए हंगामा शुरू हुआ। मेरे वो अल्फाज आप बोल दीजिए जिसमें मैं जाहिलाना अंदाज में बात किया। अपने अल्फाज सुन लो भाई, सुन लो जी जी, अपने अल्फाज सुन लो। फसीहुद्दीन क्या एक आदमी वैसे ही गुफ्तगू करता जैसे तुम कर रहे हो? शेख, मैं 16.5 मिनट के रुकिया के उस वीडियो में कुछ ऐसी बात तकलीफ दे या बदतमीजी के बोला ही नहीं। शेख, मुझे अल्फाज मेरे बता दीजिए। फसीहुद्दीन, सारा फसाद तुम्हारे लहजे और तुम्हारे बातों से हुआ है। तो वो लहजा कौन सा है, वो बात कौन सी है, मुझे बता दीजिए मेरे मोहतरम, ताकि मैं जो आइंदा वो बात नहीं बोल सकूं। पूरी दुनिया से पूछो, पूरी दुनिया से पूछो, कौन सा अल्फाज तुमने इस्तेमाल किया है, कौन से शराफत के अल्फाज, कौन से बेहतरीन अंदाज तुमने इख्तियार किया? तो मुझे बताइए ना शेख साहब, आप मेरे शेख हैं, आप बताइए। दुनिया से क्या पूछूं, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। आज हमसे पूछो, सारा मामला बिगड़ जाने के बाद हमसे पूछ रहे हो तुम। शेख यहाँ पर हमारा और शेख मुकीम की अगर बात थी तो आपके फर्जन को क्या जरूरत थी, मैं ये पूछ रहा हूँ। वो वहाँ शारजा में बैठे, यहाँ की हालत में क्या जानते हैं? हर आदमी, तुम्हारा मामला है तो अफसर अली के पीछे तुम क्यों पड़े हुए हो? अफजर अली के पीछे हम क्यों पड़े हुए हैं? आप शेख वसीउल्लाह अब्बास हफीज़हुल्लाह से जान सकते हैं अफजर अली के बारे में, शेख सलाउद्दीन मकबूल मदनी साहब से जान सकते हैं, शेख अल्लामा अब्दुल मुईन मदनी से जान सकते हैं। अच्छा तो ठीक है, उनका मामला उनके पास है, तुमको भी पूछ पाए आपसे। अरे शेख, मैं इनके साथ हूँ ना, इनकी शेख सलाह की इजाजत के बाद ही तो जमीयत बनी ना हैदराबाद और तेलंगाना की। तो अब्दुल हमीद मुफ्ती वगैरह के साथ में फिर आपको तकलीफ हो रही है अब्दुल हमीद से? शेख अब्दुल हमीद भाई, तो क्या जरूरत पड़ी वहाँ से बैठ के ऐसे वीडियोस बनाने की? मेरा आपसे ये सवाल है। जरूरत उसको पड़ी होगी, उससे पूछो तो जरूरत है, उस हमसे तो पूछो, उससे पूछो। वो आपके फर्जंद है मेरे बुजुर्ग, वो आपके फर्जंद है। ठीक है, उससे पूछो ना, कोई वजह नहीं होगी जिसके बिना तुम्हारे पूछो उससे। तुम मैं पूछूंगा, लेकिन जो है इतनी बहस सुनो, इतनी बहस तुमने कर डाला उससे, इतनी बातें कर डाली, अब हम तुम पूछ रहे हो आपका फर्जंद है। पहले तुमने बताया किनसे बहस करा, मैं किनसे बहस किया, क्या बातें कर डाला शेख? अभी तक तो अब्दुल हमीद भाई से मेरी कोई बात ही नहीं हुई आज तक। अरे भाई व्हाट्सएप पर और कुछ नहीं हो रही बात आपकी? मैं आपके फर्जंद से पूछ लीजिए ना, मैं अब्दुल हमीद भाई को व्हाट्सएप किया, ना कॉल किया, ना फेसबुक किया, मैं उनसे बात नहीं किया। कुछ नहीं किए, लेकिन फेसबुक पर या उस पर व्हाट्सएप पर आपकी गुफ्तगू हो रही है। फेसबुक पे मैं क्या डाला, मैं शेख जफर उल हसन मदनी हफीजुल्लाह से मिला दिसंबर 2016 में। मैं इतनी बात डाला कि अरशद बशीर मदनी हफीजुल्लाह ने कहा था 2008 में, रुकिया सेंटर एक इज्तिहादी मसला है और जो है ये इलाकाई जरूरत है कि इबादत गैर महजा में है। ये मैं वो लिखा, आपके फर्जन के खिलाफ कुछ नहीं लिखा। मैं बस ये लिखा कि फर्जन को चाहिए था कि वालिद से जो है इल्म ले ले इस बारे में। वालिद जो है मेरे पास रुकिया करने पेशेंट को भेजे हैं, अगर रुकिया सेंटर बिगात होता तो वालिद मोहतरम नहीं भेजते। बता दिया जहाँ मैंने क्या था, उस बात खत्म हो गई जी, अब बात खत्म हो गई, मैंने बता दिया आपको, मैंने ये कहा था। जी हाँ, आपने तो नहीं कहा फसीहुद्दीन के मुनकरात या फसीहुद्दीन के खुराफात, लेकिन झूठे लोग अपने तरफ से आपके ऊपर झूठ मंसूब कर रहे हैं। हमने किसी का नाम नहीं, उमूमी बात मैंने कही। जी हाँ शेख, उमूमी बात आपने कहा, लेकिन मेरा नाम आप नहीं लिए, लेकिन लोग मेरा नाम ले रहे हैं, तो इसलिए जो है मेरे को यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं बहुत सारे। पूछो इस शेख ने हमारा नाम लिया। शेख मेरे हेलो जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो रुपया की बात थी तो मेरे को उस पर कोई लोड नहीं था। वो अगर कुछ बोले हैं, मैं उनसे क्या बात करना है, उनसे नंबर जो है मेरे अब्बू जो है उनको फेसबुक की है, अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी करके आप अपना मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर दीजिए बोले, लेकिन हमारे अब्बू को उन्होंने जवाब नहीं दिए। और मैं जो है यहाँ पर ये सोचा कि नहीं, शेख जफर साहब से बात करना पप्पा, आप जो है अब्दुल हमीद भाई से ना करिए, क्योंकि वो कुछ नहीं जानते यहाँ के बारे में, लेकिन शेख यहाँ के बारे में सब जानते हैं। मैं शेख से बात करता हूँ, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उनसे बात नहीं किया। उनको क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने यहाँ पर के हालात नहीं जानते हुए डायरेक्ट इस तरीके से हमारे ऊपर जो है बोल दिए और अहले हदीस के लिबादे में खवारिज बोल दिए। ये तकलीफ दे बात है शेख, ये तकलीफ दे बात है। उससे पूछ लो। ठीक है, मैं इंशाल्लाह उनसे पूछ लूंगा, लेकिन इंशाल्लाह लोग जो झूठ फैला रहे हैं, मैं ये बात इंशाल्लाह फैला दूंगा लोगों के पास कि शेख ने नहीं कहा है फसीहुद्दीन के मुनकरात या फसीहुद्दीन के खुराफात, आम शेख ने कहा है बात। जी चलिए, अस्सलाम वालेकुम।